Yes, once again, a very good morning to all of you. Just have a look. We are going to start chapter 2 of Indian Eco. That is Indian economy from 1950 to 1990. 1950 से लेके 1990s तक हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन थी उसके बारे में हमारा ये चैप्टर है जो हमें एक एक डिटेल बताएगा, स्पेशली एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। जो मेन फोकस रहेगा वो एग्रीकल्चर पे और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे रहेगा। जैसा कि हमने अभी पिछले चैप्टर में भी यही पढ़ा है, मेन फोकस हमारा किस पे था, ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सो जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है, जैसे कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, 5 ईयर प्लान क्या होता है और उसमें क्या क्या गोल्स होते हैं। Then after, again the main focus on agricultural sector and industrial development. Along with this, we will also discuss some things related with foreign trade, and then a critical appraisal. That means the conclusive part. Just have a look. In the initial paragraph, they have written very simple thing that in the previous chapter, we have learned that on the eve of independence, Indian economy was completely undeveloped. हमने last chapter में discuss कर लिया है कि independence के time हमारी economy कैसी थी, undeveloped थी। अनडेवलप्ड होने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी में कुछ और चीजें थी, जैसे कि इकोनॉमी बैकवर्ड थी, इकोनॉमी स्टेगनेंट थी, इकोनॉमी में डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी, जिसमें कुछ भी एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। इसके बाद देखिए, after 200 years of British rule and their exploitative policies, India finally got freedom on 15th August 1947. यानी 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हमें कंट्रोल किया, अपनी एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज हम पे यूज की। देन आफ्टर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें इंडिपेंडेंस दिलाया ऑन 1947, 15th of August। ये हम सबको पता है, राइट? Now it was necessary to reconstruct the backward and stagnant Indian economy into a developed one. ये आपको याद रखना जरूरी है कि इंडियन इकोनॉमी जो कि कैसी थी, बैकवर्ड थी, बैकवर्ड होने के साथ साथ कैसी थी, स्टेगनेंट थी। इस बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी को वापस से रीस्ट्रक्चर करना, वापस से इसको डेवलप करना जरूरी था। आगे, therefore the most important task before the government of independent India was to decide the type of economic system. बहुत सारे तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं by following which we can pursue the economic activities in any nation. तो हमारी गवर्नमेंट का पहला टास्क था ये डिसाइड करना कि हम कैसा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करने वाले हैं जो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हो। Now just have a look. They have given you the first definition of this chapter, that is the definition of economic system. What is it? Economic system refers to an arrangement by which central problems of an economy are solved. एक ऐसा arrangement जिसकी मदद से हम अपनी इकोनॉमी की जो भी central problems है उन central problems को solve करते हैं, उसी system को economic system कहा जाता है। Okay. So basically, what is economic system? It is an arrangement by which we solve the various central problems of an economy. अब economy की central problems होती क्या है? Central problems are basically the problems which are being faced by each and every economy, and this is the topic which is also covered in your first chapter of microeconomics, right? Last year जो आपने 11th को पढ़ा था। Problem number 1 is what to produce. What to produce includes two decisions. Decision number 1, selection of type of goods and services are to be produced, and deciding the quantity in which the goods will be produced. I'm reading the point for you. It involves deciding the final combination of goods and services to be produced. यानी कौन से goods बनाएंगे. It involves selection of goods and services. It means we have to decide हमें consumer goods ज़्यादा बनाने हैं या capital goods बनाने हैं या war time goods बनाने हैं। जैसे अभी COVID-19 है तो हमारा सारा focus किस पे है, health services पे है, तो उसी तरीके से हमें selection करना है कि कौन से goods बनाने हैं। Along with this selection, we also need to decide about the quantity of each that the economy should produce. अगर हमें अभी health services पे ज़्यादा focus करना है तो health services पे कितना amount लगाना है और कितनी quantity में हमें आने वाले time में beds develop करने हैं, hospitals develop करने हैं। Along with this, कुछ consumer goods भी तो बनेंगे तो उनकी क्या quantity होनी चाहिए, this we will decide in our problem number 1. Have a look on second one.
how to produce, कैसे बनाया जाए. There are basically two techniques of production. Technique number one is labor intensive technique and technique number two is capital intensive technique. So we need to decide on which technique we are supposed to focus more. About these two techniques you all already know, right? Number three is basically related with distribution of output among people. It means we have to select the category of people who will be able to consume the goods and services produced by us. Whether the richer section will be able to consume it or we are producing for the poor sector also. Just have a look. Types of economic system. Economic system कितने type के होते हैं? Basically there are three types of economic system: capitalist economy, socialist economy and the mixed economy. Capitalist economy वो economy है जिसमें सारे production के जो resources है उनकी ownership, control and management is in the hands of private sector only. और जब भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है तो द मेन ऑब्जेक्टिव विल बी अर्निंग प्रॉफिट, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. तो आप इसके नीचे नोट डाउन कर लीजिए, द इकोनॉमी वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड, कंट्रोल्ड, ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर with the aim of maximizing profit is known as capitalist economy. उसी तरीके से socialist economy where the resources are owned, controlled, operated and managed by government and the aim of government is maximizing social welfare. And mixed economy where both the sectors are working, private is working with the aim of maximizing profit and public is working with the aim of maximizing social welfare. Now just have a look. इसमें आप underline कर लेना earning profit को. और ये जो तीन मेजर प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ओनली दोस गुड्स विल बी प्रोड्यूस जो मैक्सिमम प्रॉफिट पे सेल आउट किए जा सके, वेदर इन डोमेस्टिक मार्केट और इन फॉरेन मार्केट डजंट मैटर, टारगेट सिर्फ इतना है कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो. हाउ टू प्रोड्यूस, आप इसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मत लिख देना. प्राइवेट सेक्टर वो टेक्नोलॉजी यूज करता है जहां पे चीप रेट में चीजें प्रोड्यूस हो सके. चीपर टेक्निक जो भी होगी उसको प्राइवेट सेक्टर प्रेफर करेगा. अगर लेबर चीप है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक एज द कैपिटल इंटेंसिव. फॉर होम टू प्रोड्यूस, ध्यान रखें अगर हम अभी कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल के डोर्स केवल उन्हीं लोगों के लिए ओपन है who are able to pay for the services, right? It doesn't matter कि उनके पास इनकम है या नहीं है, उनको जरूरत है या नहीं, केवल उन्हीं के लिए ट्रीटमेंट है इन प्राइवेट हॉस्पिटल जो पैसा दे सकता है. बट इन केस ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल सभी के लिए वो ओपन है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है. तो फॉर होम टू प्रोड्यूस प्राइवेट सेक्टर में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जिनके पास इनकम है, जिनके पास परचेजिंग पावर है, केवल उन्हीं के लिए. सोशलिस्ट की बात करें तो द एम इज मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर. वही चीजें बनेगी जो सोसाइटी के लिए जरूरी है, उसी टेक्निक से बनेगी जो ज्यादा बेनिफिशियल है. इसमें यू कैन ऐड, बुक में ज्यादा रिटर्न नहीं है. द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड. आगे आप एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं आफ्टर दिस फुल स्टॉप. कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव, आई एम रिपीटिंग, keeping in mind the objective of maximizing social welfare. Maximizing social welfare. Government ही decide करती है. You can even add, in an economy like India, labor-intensive technique is preferred because of huge unemployment, right? The third one, for whom to produce, जिसको जरूरत है. जैसे फ्री हेल्थ केयर मिल रहा है हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ऑल्सो इट हैज प्रूव्ड टू बी इनएडिक्वेट ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ कोविड-19, बट गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल जरूर करवा रही है. In mixed economy, both private as well as public sector work together for solving the various central problems. And objectives, both the objectives go side by side. The objective of maximizing profit also and the objective of maximizing social welfare. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें इंडिया की तो स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर की भी है और पब्लिक सेक्टर की भी है, राइट? हॉस्पिटल्स भी दोनों मिलेंगे आपको. आगे देखिए, वी हैव डिस्कस्ड द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम. हमने कैसा इकोनॉमिक सिस्टम चुना? तो वी ऑल नो वी हैव अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, राइट? हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना था. इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद हमारे यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा था कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हमें अडॉप्ट करना चाहिए.
कुछ लीडर्स ने कहा सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कीजिए, कुछ ने कहा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट कीजिए। कौन सा डिसीजन लेना, कौन सा सिस्टम फॉलो करना है, ये डिसाइड करने की पावर थी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास। तो उन्होंने ये देखा कि भाई दोनों सिस्टम इंडिविजुअली फॉलो करने से बेटर है, दोनों के पॉजिटिव चीजों को ले लेते हैं, दोनों के बेस्ट फीचर्स को ले लेते हैं। दोनों कौन से? नंबर 1 द सोशलिस्ट सिस्टम एंड नंबर 2 द कैपिटलिस्ट सिस्टम। दोनों के पॉजिटिव फीचर्स को लेने के बाद लेट्स जस्ट अडॉप्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें हम एक प्रॉपर वे से अपनी इकोनॉमी को रन कर सके। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, मैं बुक रीडिंग कर देती हूँ आपके लिए। आफ्टर द फ्रीडम leaders of independent India were confused with regard to economic system to be followed in India. Confused थे वो, कौन सा system follow किया जाए? Some leaders were in favor of socialist economy. However, in a democratic country like India, complete dilution of private ownership was not possible. ये कह रहे हैं इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक नेशन में जो अभी अभी फ्री हुआ है, अभी तक तो हमारे ऊपर दूसरों का कंट्रोल था ही, तो अभी अभी वो फ्री हुआ है, उसमें हम अगर बात करें सोशलिस्ट की तो वो पॉसिबल नहीं होगा। देन कैपिटलिस्ट सिस्टम जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको यही लगा कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी लोगों ने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन फेस आउट किया है, ब्रिटिशर्स ने हमें कंप्लीटली एक्सप्लॉइट किया, तो ऐसे में लोगों को फ्रीडम देना जरूरी है। As a result, the mixed economy with best features of both socialist and capitalist economy was adopted by the Indian economy. हमने कौन सा सिस्टम चुन लिया? मिक्स्ड सिस्टम। In this view, India would be a socialist economy with strong public sector, but also with private property and democracy. यानी इंडिया कैसी रहेगी? एक सोशलिस्ट सोसाइटी तो रहेगी जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल है, पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल है, बट इसके साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी प्रॉपर्टी ओनरशिप के राइट मिलेंगे और कंप्लीट डेमोक्रेसी से हमारी इकोनॉमी रन होगी। अब देखिए ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग। In this topic, you will discuss about the meaning of economic planning and about the setting up of planning commission, कब सेटअप हुआ था, कौन उसके चेयरमैन रहे थे, वो सारी चीजें इस टॉपिक में से, टॉपिक नंबर 2.2 से काफी 1 मार्क क्वेश्चंस बोर्ड में बनते हैं। So let's just proceed. After adopting the mixed economic system, the next important step for the government was to revive the poor, backward, stagnant economy inherited from British. यानी जो हमें एक बैकवर्ड इकोनॉमी मिली थी ब्रिटिशर्स से, उसका रिवाइवल हमारा मेन टास्क था। Just have a look. For the development of Indian economy, it was necessary for the government to plan for the economy known as economic planning. In order to develop the economy which was backward, there is a need that government should start planning for the economy, right? And this planning is known as economic planning. Now just read the definition of economic planning. What is written over here? Just go through it. Have a look. I am explaining it for you. Economic planning can be defined as making major economic decisions. यानी planning की starting कहाँ से होती है? Planning का main concern क्या है? It is making major economic decisions. The 3 important decisions related with what to produce, how to produce, and for whom to produce. By the conscious decision of a determinant authority. यानी एक डिटर्मिनेंट अथॉरिटी डिटरमाइंड होगी जिसके पास ये पावर होगी कि वो इकोनॉमी के लिए ये डिसीजंस लेगा on the basis of a comprehensive survey of the economy as a whole. यानी ये डिसीजन हमें ऐसे ही नहीं ले लेने हैं, बाय चांस ही नहीं ले लेने। इन डिसीजंस को लेने के लिए there is a need of complete survey of overall economy. जैसे जो अभी कोविड के टाइम में लॉकडाउन एक्सपेंड करने का डिसीजन लिया है, क्या ये ऐसे ही ले लिया गया? डेफिनेटली नो। ये प्लानिंग हुई है पूरी इकोनॉमी का सर्वे करने के बाद, और डिसीजन लेने की पावर भी अलग अलग इंडिविजुअल्स को दी गई, राइट? तो आप इसको लिंक कर लीजिए करंट सिनेरियो के साथ। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या रहा? एक प्रोसेस रहा, एक एक्टिविटी रही जिसमें मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लिए गए। लिए किसने? एक डिटर्मिनेंट अथॉरिटी ने। किस बेसिस पे लिए? इकोनॉमी का कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया और इकोनॉमी की कंडीशंस के बेसिस पे हमने ये डिसीजन फाइनलाइज किया। देन आफ्टर रीड द नेक्स्ट पॉइंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके। The Industrial Policy Resolution of 1948. It is the first industrial policy resolution passed in India.
पहली बार जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो आया 1948 के अंदर. And the directive principles of Indian Constitution assigned a leading role to the public sector, and private sector was also encouraged to be a part of the planned efforts. यानी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन हमने फ्रेम आउट किया उसके अकॉर्डिंग लीडिंग रोल रहेगा पब्लिक सेक्टर का, दैट मींस द गवर्नमेंट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ मौके दिए जाएंगे टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन. फिर देखिए अगेन वन मार्क क्वेश्चंस बहुत है यहाँ पे. To make economic planning effective, the government of India set up Planning Commission in 1950 with Prime Minister as the chairman. गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन सेटअप किया इन द ईयर 1950. प्राइम मिनिस्टर वाज द चेयरमैन. अब इस प्लानिंग कमीशन का नाम चल रहा है नीति आयोग. यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड. करंटली ये प्लानिंग कमीशन नाम से नहीं जाना जाता है, अब इसका नाम है नीति आयोग. आगे देखिए प्लानिंग कमीशन का क्या पर्पस हो सकता है. ऑब्वियसली द पर्पस विल बी मेकिंग द प्लान्स फॉर इकोनॉमी. सो जस्ट हैव अ लुक. The purpose of commission was to carefully assess the human and physical resources of the country and to prepare the plans for effective use of resources. Human और physical resources को analyze करना, उसके बाद में उन resources का कैसे utilization करना है, उससे related decisions लेना, उससे related planning बनाना. It was the work of Planning Commission which was set up in 1950. Next, the Planning Commission fixed the planning period at 5 years, which began the era of 5-year plans. हमने क्या follow किया? 5-year plan का system follow किया, right? First 5-year plan 1951 में introduce हो गया. ये देखिए नीचे it is given. It must be noted that Planning Commission is no more in existence. On 1st January 2015, a cabinet resolution was passed to replace the Planning Commission with newly formed Niti Aayog. नीति आयोग की फुल फॉर्म भी गिवन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ये आपको याद रखना है. 1 मार्क क्वेश्चंस कितने हो गए. नंबर 1 मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. नंबर 2 द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन. नंबर 3 द ईयर व्हेन प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप. नंबर 4 द करंट नेम ऑफ प्लानिंग कमीशन, दैट इज नीति आयोग. Okay now. Okay then, thank you so much. See you tomorrow in the next class. We will discuss about the plans in detail and then we will discuss about the goals of 5-year plans. Till that, stay healthy, stay safe.